So dear students, welcome again in this lecture to the room. जैसा कि आप जानते हैं कल हमने टॉपिक जो पढ़ा दैट वाज नॉमेनक्लेचर. हमने उसमें डिस्कस किया कि हाउ वी गिव नेम टू एन ऑर्गेनिज्म, या कौन से रूल्स प्रिंसिपल्स क्राइटेरिया, या किसने पहले पॉलिनोमियल दिया था उसके बाद बाइनोमियल, या वो हमने डिस्कस कर दिया. तो आज का टॉपिक जो है दैट इज क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन एज यू नो, sometimes I have told you that classification it is a process in which we arrange, or we can say this is arrangement. Yes, sir. Arrangement of, अगर जनरल मतलब यहाँ हम लिविंग थिंग्स की बात नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जनरली व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स on this we can say systematically. Yes, sir. We can say the arrangement of objects, substances, things in a systematic manner, that is called as classification. But as far as organisms, whether it may be a plant or it may be animals, so अगर उनकी बात हम करेंगे तो वहाँ यहाँ कहेंगे arrangement of organisms, into different groups or categories according to, या हमने according to some diagnostic features, or characters. So it is called as, yeah, we can define it in another way, the process which refers to arrangement of organisms. So organisms include plants, animals, bacteria, virus, whatever it may be. So arrangement of organisms into different groups or categories into according to some diagnostic features or characters. Yeah, we can say grouping of organisms. ये भी हम लिख सकते हैं grouping of organisms into different categories, on the basis of certain diagnostic features or characters. So it is called as classification. या मैं ऐसे भी इसको डिफाइन करूँ, grouping of organisms into different categories in a systematic way. In a grouping of organisms into different categories in a systematic way. So this is called as classification of organisms. तो अगर यहाँ हम बात करेंगे कैसे ये organisms क्लासिफाई कर दिए गए, या what are the ways by which we can classify the organisms into different categories. तो इसके बारे में different scientists can take existence. So they give their opinions, they give their different kinds of laws or principles or different types of systems. So they classify organisms. So पहले हम बात अगर यहाँ लेंगे, so we can write down here kingdom system of classification. या पहले लिखेंगे kingdom, बाद में हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे types of classification, या systems of types of systems of classification. Kingdom बाद में हम लेंगे, ठीक है. यानी systems of classification. तो जहाँ तक systems की हम बात करेंगे, there are 3 different types of systems. 3 तरीके हैं जिनके जरिए हम इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं. दे इंक्लूड नंबर 1
artificial system of classification. First is called as artificial system of classification. Second is called as natural system of classification. Third is called as phylogenetic system of classification. So these are called as three systems of classification. First is artificial system of classification, second is natural system, third is called as phylogenetic. पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम का क्लासिफिकेशन. यहाँ इट वाज गिवन बाय लिनाइस. कल भी मैंने बताया लिनस ने बहुत शानदार काम की किसमें, क्लासिफिकेशन में, नॉमेनक्लेचर में. उसने बहुत से बुक्स लिखे हैं. एज आई टोल्ड यू स्पीशीज प्लांटेरम, जनरा प्लांटेरम, देन आई टोल्ड यू दिस सिस्टमा नेचुरी. तो ये भी मैंने आपको बताया. उसने 7100 स्पीशीज डिस्क्राइब किए हैं, उनके नाम भी दिए हैं. सो यहाँ भी उन्होंने एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यहाँ अगर आर्टिफिशियल सिस्टम की बात हम करेंगे तो उन्होंने यहाँ भी कुछ कैरेक्टर्स दिए. मैंने कहा ना क्लास पे हम करते हैं तो ऑन द बेस ऑफ सर्टन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स वो उसमें होने चाहिए. मैंने कल भी कहा आपको, जब मैंने नॉमेनक्लेचर पढ़ाया तो उस वक्त मैंने आपको बताया जब हम किसी को नाम देते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स हम सामने रखते हैं जो उसमें हों. ऑन दोज बेस ऑफ कैरेक्टर्स वी गिव नेम टू दैट ऑर्गेनिज्म. सो सिमिलर केस देयर आर सर्टन कैरेक्टर्स जिनकी बदौलत जिस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया गया. तो लिनाइस या बाकी साइंटिस्ट उन्होंने यहाँ कुछ सुपरफिशियल कैरेक्टर्स लिए. दे टुक सम सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, कुछ सुपरफिशियल या फिटनेस वो उनमें इतनी रिलेशनशिप नहीं थी. फॉर एग्जांपल देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सो कुछ कैरेक्टर्स उनमें देखिए कि वो सेम वो दिखाया, इसमें भी कैरेक्टर वो प्रेजेंट है, इसमें भी थोड़ा बहुत, तो वो उन्होंने ले लिया. तो दोज कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज सुपरफिशियल कैरेक्टर्स. तो उसकी बुनियाद पर उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. फॉर एग्जांपल उन्होंने हैबिटेट ये एक कैरेक्टर उन्होंने ले लिया, हैबिटेट. तो हैबिटेट यू नो हैबिटेट इज द लिविंग और डेवलिंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, या हम कहेंगे इट इज द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. यानी जहाँ एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ सर्वाइव करेगा, जिएगा, तो उसको हम उसका हैबिटेट कहते हैं. तो एक कैरेक्टर उन्होंने यहाँ क्या लिया, यहाँ हैबिटेट. फॉर एग्जांपल सम लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड एज एक्वेटिक. सो जो भी ऑर्गेनिज्म किसमें पानी में रहता हम उसे एक्वेटिक कहते हैं. डजंट मैटर वेदर दैट इज अ प्लांट, दैट इज एन एनिमल, दैट इज बैक्टीरिया, दैट इज फंगस. So they are called as aquatic. Similarly, those who live on land, they are called as terrestrial. And ये कैरेक्टर इस बुनियाद पे कि जो लैंड पर रहता है उसको टेरेस्ट्रियल बताया गया. ये यहाँ तो इन्होंने नहीं मतलब मद्देनजर नहीं रखा कि ये ऑर्गेनिज्म प्लांट है, वायरस है, बैक्टीरिया है, व्हाटएवर. सो दे कॉल इट एज या अदर. फॉर एग्जांपल विंग्स, एक और कैरेक्टर विंग्स. जिस ऑर्गेनिज्म में विंग्स हैं और वो फ्लाई करता है, यानी जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जिसके पास विंग्स भी हो और फ्लाई भी करता हो, दोनों कैरेक्टर, एक तो विंग्स भी हो तो वो उनको बर्ड्स कहा गया. ठीक है, यानी जिसके पास विंग्स भी है और फ्लाई भी करता है उसको बर्ड्स कहा गया. फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल ऑफ स्पैरो इज हियर. It has wings, it flies, it's called as bird. Bat, that too has wings, that too flies. They capture in birds. मगर हम जहाँ तक बैट का ताल्लुक है ये मैमल है. It gives birth or it gives birth to its young one. मगर किसने रखा? Birds में. Why? Because it flies. So this character is called as superficial character. अगर यहाँ बात करेंगे hen की, duck, उनके पास विंग्स है ना? विंग्स है. Ostrich, क्या वो फ्लाई कर सकते हैं? So they are not birds, but what are they actually? They are birds. So these characters are called as superficial characters. They took these characters and classify organisms on these, for example, habitat,
aquatic, terrestrial, as well as these rings. So this type of classification is called as artificial system of classification. So it is not acceptable today. मतलब इसकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं, बिकॉज देयर आर 1.8 और मोर देन 1.8 मिलियन स्पीशीज, मतलब स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो इसकी बुनियाद पर हम प्लांट्स का, मगर उन्होंने आइडिया दिया उस वक्त वो हैबिटेट की, मतलब ये मतलब बर्ड फाइंड करना था, ये तो बहुत बड़ी बात थी, या विंग्स फ्लाई. तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि हम कुछ ना कुछ लेंगे कैरेक्टर, तो जिसकी बुनियाद पर हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते. तो उसके बाद नेचुरल सिस्टम. नेचुरल सिस्टम हियर मीन्स देयर शुड बी नेचुरल रिलेशनशिप. नेचुरल रिलेशनशिप. Natural relation. So 7 is called as natural system of classification. So यहाँ क्या दे दिया गया? नेचुरल रिलेशनशिप. ये दो बॉटनिस्ट थे, एक का नाम था बेंथम, दूसरे का नाम था हुकर एंड बेंथम. These two scientists or biologists, they gave natural system of classification. तो यहाँ क्या उन्होंने मद्देनजर रखा है, कैरेक्टर किया natural relation. But here they do not touch animals. उन्होंने यहाँ एनिमल को क्लासिफाई नहीं किया, but they classify organisms, plants. Sorry, they classify plants. Bentham and Hooker classified plants. Number 1, monocot. Number 2, gymnosperms. Number 3, dicot. तो यहाँ क्या उन्होंने ये जो प्लांट्स के लिए जिनमें उनको नेचुरल रिलेशनशिप, मतलब जिनके दरमियान उन्हें नेचुरल रिलेशनशिप देखी, तो उनको क्लासिफाई उन्होंने किया into 3 types. One is called as monocot, second gymnosperms, third dicot. What are monocots? They have single cotyledon. Dicots, they have double cotyledon. मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम एक डाइकॉट या बीन ले लेंगे, यहाँ पे मटर ले लेंगे, जिसको जब हम इसको सो करते हैं जमीन में, तो पहले वहां से 2 dark green leaf-like structures come out of the soil. So those leaves, they are not the actual leaves. They are not, so they are called as cotyledonary leaves. So when there comes one leaf, may be called as monocot. Then 2, they are called as dicot. For example, मेज की बात करेंगे हम. जब मेज सिर्फ जमीन में हम सो करते हैं, तो वहाँ से सिर्फ सिंगल लीफ पहले आता है. So they are called as monocot. So second difference, एक अगर हम सीड ले लेंगे डाइकॉट का, तो उसको हम 2 हिस्सों में बराबर बांटेंगे, है ना, मतलब मटर की बात करेंगे तो दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 equal parts. बीन की बात करेंगे, है ना, बट देयर आर सम सीड्स, फॉर एग्जांपल राइस, मेज, है ना, तो उनमें हम इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, तो वो दैट डू नॉट गेट डिवाइडेड इनटू 2 equal parts. But this one difference, we have no seed, we have plant. Yes, so how we can classify plants into monocot and dicot? So on the basis of venation. ये मैंने आपको, जब मैंने मार्फोलॉजी पढ़ाई, वहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया. Venation means arrangement of veins on this veins आसन. So it makes a network like structure. मगर मेज की बात करेंगे, वहाँ तो ऐसे होता है. So here it's called as reticulate venation. Here it's called as venation. So जिस प्लांट में आप रेटिकुलेट वेनेशन देखेंगे, so that is dicot. जिसमें आप parallel देखेंगे, that is monocot. Clear? So they classify monocot and dicot. Now gymnosperm. Gymnosperm अगर लेंगे, this is Greek word gymnos. Actually is a Greek word. Gymnos means naked. So gymnos means naked. Sperma means seed. In case of some plants or some trees, जब seeds produce होते हैं, जब बनते हैं, तो they are not covered, they are naked.
बट इन सम केसेस दे आर कवर्ड. फॉर एग्जांपल सेब की हम बात करेंगे तो सीड कहाँ होता है? फ्रूट के अंदर होता है ना. पेयर की बात करेंगे तो सीड अंदर होता है. अगर जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, पाइनस कशिर पे यर्ड वन, तो अगर उसके मैंने दिखाया वो पून फीमेल पून, वहाँ उसमें सीड्स होते हैं. तो दो सीड्स आर नॉट कवर्ड, they remains naked, so that is why they are called as gymnosperm. So they classify their plants into three groups. One is called as monopod, gymnosperm, but it was drawback there, they kept this in between monocot. And कभी कभी क्वेश्चन आता है, what is the drawback of Bentham and Hooker system of classification in placement of between? हालांकि ये उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दे दी है कि उन्होंने बेंथम एंड हुकर, ये एप्लीकेबल है इंडिया में, यही फॉलो करते हैं. It is very simple, it is easy to handle, it is easy to learn. So इंडिया में यही, क्योंकि ये इंग्लैंड के थे तो उस वक्त इंग्लैंड की हुकूमत थी यहाँ पे, तो उस वक्त से लेके आज तक यही ज़्यादातर एप्लीकेबल है इंडिया में, यही फॉलो किया जाता है. कौन सा? बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ, या वी कैन से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लियर? थर्ड इज कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक. Phylogeny. What is phylogeny? Phylogeny. And it refers to evolutionary trend or origin. यानी कहाँ से इवॉल्व हुआ ये मैन, कहाँ से इवॉल्व हुए स्पीशीज, कहाँ से इवॉल्व हुए ऑर्गेनिज्म. दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन. You may have, you will read it in, or we can say you will be in the 12th class. There is a chapter evolution. So वहाँ आप पढ़ेंगे evolution. So किस तरह ये evolution हुआ? Evolution. Can you define evolution? What is evolution? मैंने कभी बताया है, ये एक्चुअली लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया. E means out, valvo means folding और रोलिंग. अगर हम किसी चीज को रोल करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये नोटबुक आ दे दो, मिसाल के तौर पर मेरे लिए मैं इसको रोल करता हूँ, ठीक? देखो ये रोल मैंने इसको किया. तो अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बताओ यहाँ आपको क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? कुछ वाइट एंड सम ब्लू लाइन्स. एनीथिंग एल्स? और कुछ दिखाई देता है? यहाँ पे देखो क्या दिखता है, यहाँ पे वाइट एंड ब्लू लाइन्स. तो ये फोल्ड है या अनफोल्ड है? फोल्ड है. अब मैं इसको अनफोल्ड करता हूँ, अब मैं इसको अनफोल्ड, तो अब जब मैंने अनफोल्ड किया तो क्या यहाँ आया? सिर्फ सफेद और ब्लू आया. अब क्या आने लगा? मोर. क्या ये कॉम्प्लेक्स क्या सिंपल है? यहाँ पे क्या था? सिंपल. और मैं इसको अनफोल्ड करने जा रहा हूँ तो क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स. जितना जितना मैं इसको अनफोल्ड करूँगा उतना उतना क्या बनेगा? ये कॉम्प्लेक्स बनेगा. या आई कैन से दिस वाज सिंपल, दिस इज एडवांस. सो यहाँ एक चेंज आ गई. चेंज क्या आ गई? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू एडवांस. सो दिस कॉल्ड एज evolution. And evolution is actually change from simple to complex, but this is gradual change. So यही जब हम लेते हैं phylogeny, so it refers to evolutionary trend. Evolutionary trend. यहाँ पर जब हमने क्लासिफाई किए ऑर्गेनिजम्स ऑन बेसिस ऑफ सर्टेन सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, यहाँ पे हमने ले लिया नेचुरल रिलेशनशिप, बट यहाँ हम लेते हैं एवोल्यूशनरी ट्रेंड. जो पहले बना उसको हम सिंपल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म. जब हम क्लासिफाई करते हैं मोनिरा में क्या आता है? बैक्टीरिया. उसको हम पहले रखते हैं, है ना? तो जिसका है सिंपलेस्ट. तो उसके बाद जो बनता है मोर एडवांस दिस, उसके बाद जो बनता है मोर एडवांस, देन लास्ट पे मैन आता है. सो मैन इज कॉल्ड एज हाईली एडवांस. सो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एवोल्यूशन. So this system will be called as phylogenetic. In here, organisms here organisms were classified on the basis of evolutionary trend. In this system, organisms were classified on the basis of evolutionary trend or phylogeny, we can say. जो ऑर्गेनिज्म पहला बना या पहले इवॉल्व हुआ उसको पहले रखा गया, जो उसके बाद आया उसको उसके बाद आया, जो लास्ट पे आया. फॉर एग्जांपल अगर प्लांट की हम बात करेंगे तो प्लांट्स में पहले हम लाइकेन्स लेते हैं. कल हम गए थे वहाँ, कल हम गए थे ना वहाँ पर टूर पर, तो मैंने आपको दिखाया वहाँ पर. उससे पहले भी मैं
बहुत बार मैं मतलब नेचुरल वॉक पे गया था, तो नेचुरल वॉक पे मैंने आपको बताया, दिखाया ये लाइकन्स, तो उसके बाद मैंने आपको बताया ब्रायोफाइट्स, उसके बाद मैंने आपको बताया टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जो पहले ये फर्स्ट plant unity, this is the last plant. So this is called as evolutionary trend, or this system is called as phylogenetic system of. So it was given by Pranter and Engler. Engler and Pranter, these were two scientists. They give this system of. तो यहाँ क्या ले लिया उन्होंने, evolutionary relationship यानी phylogeneity ले ली, उसके एतबार से उन्होंने plants को और organisms को classify. So this is more applicable, और ये ज़्यादातर ये throughout world ये होता है, मगर इंडिया में कौन सी चल रही है? Natural system of. So these are called as systems of classification. These are called as. So it was systems of classification. First I told you artificial system of classification, then natural system of classification, then phylogeneity. Now kingdoms of classification. Kingdoms of classification. तो यहाँ पे अगर ले लिए तो यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स इनको किंगडम्स में रखा गया, इनको क्लासिफाई किया गया किंगडम्स में। तो पहले यहाँ पे आता है टू किंगडम सिस्टम ऑफ classification. Two kingdom system of classification. तो ये टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ले लेंगे तो ये ले दे दिया लिनाइस। It was given by Linnaeus. तो लिनाइस ने मैंने बताया उसने बहुत सी काम किया, बहुत से पब्लिकेशंस के प्लांट्स डिस्क्राइब किए, उनको नाम भी दिया। तो यहाँ किंगडम की जब हम बात करें, यहाँ भी उन्होंने एक वर्क की, तो उसने क्या किया, उसने होल लाइफ को क्लासिफाई किया इनटू टू किंगडम्स। यानी Linnaeus he classified, I said before, he classified whole life into two types of kingdoms. Yes. Linnaeus classified whole life into two types of kingdoms. One is called as kingdom plantae. Other is called as kingdom animalia. Kingdom animalia. One is called as kingdom plantae, second is called as animalia. तो जो इसको लगा ये प्लांट है यार, it has plant like characters, तो उसने उनको किसमें रखा? प्लांट्स। और जो भी इसको देखा या जो भी इसको लगा ये एनिमल लाइक है उसको, ठीक है, तो उसने ये क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी whole life was classified into two kingdoms. One is called as plant kingdom, second is called as animal. How I can heard kingdom plantae, kingdom animalia. It's not English language, it's Latin language. So yes, look at drawback as a choice. It contains a number of drawbacks. कभी-कभी ये क्वेश्चन आता है, what are the drawbacks of two kingdom system of classification? उसमें कौन सी खामियां रही Linnaeus को, या कौन से ड्रॉबैक्स या लोग कर सकते? तो पहला क्या था, उसने जो भी इसको लगा ये प्लांट है, उसने किस में रखा? प्लांट। उसने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया ये वेदर इट इज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सो उसने हर लाइफ ऑर्गेनिज्म को प्लांट में रखा इसमें यहाँ पे। सो द फर्स्ट, no differentiation in prokaryotes and eukaryotes. फर्स्ट कोई डिफरेंस नहीं रखी थी, प्रोकैरियोट भी रखा है इस किंगडम में, यूकैरियोट भी रखा है इस किंगडम में। सेकंड थिंग, हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, प्लेसमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म है, हम अगर ये यूनिसेलुलर होता है उसके डिस्कवर्ड बाय सेल वॉल, तो सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। तो उसने किसमें रखा इसको? प्लांट में। लेकिन अगर देखेंगे अगर ये प्लांट है तो प्लांट का कैरेक्टर वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है ना।
प्लांट तो फोटोसिंथेसिस करता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, लेकिन जब हम बैक्टीरिया थे, सम बैक्टीरियाज आर नॉन फोटोसिंथेटिक, कुछ बैक्टीरिया सम आर फोटोसिंथेटिक बट कुछ बैक्टीरिया दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक, तो हमने उसको किसमें रखा? प्लांट में। नेक्स्ट इज इग्रीना। इग्रीना जब हम देखते हैं उसमें इट शोज डिविल नेचर, it shows divine nature. When light falls on it, it behaves a plant, carries photosynthesis. When it is away from light, it behaves animal, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसमें पेरिकल होता है, लेकिन जब उस पर लाइट फॉल होती है तो ये इट बिहेव्स लाइक ए प्लांट एंड कैरीज फोटोसिंथेसिस, लेकिन क्योंकि इस पर लाइट फॉल नहीं होती है तो इट बिहेव्स एन एनिमल। सो इसको कहाँ रखेंगे? उसको एनिमल में रखा है, दैट वाज कहाँ रखेंगे? एनिमल में अगर रखेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, अगर प्लांट में रखेंगे तो फिर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, सेल वॉल नहीं है यहाँ पे। सो इट वाज अनदर केस डिफेक्ट। नेक्स्ट इज फंजी, प्लेसमेंट ऑफ फंजी। तो फंजी की बात हम करेंगे तो उनमें सेल वॉल होता है, they are covered with cell wall, so they should be in plant. But as far as nutrition is concerned, they are saprophytes, they are heterotrophs, so they should be animals, but he kept them in plants. So this was another drawback. So these are some drawbacks. These are some drawbacks. So it is called as two kingdom system of classification. ठीक है सर? जानना बहुत। उसके बाद कारण मोजेस आया, उसने ही क्लासिफाइड होल लाइफ इनटू सिस्टम्स, ही कॉल्ड देम एज डोमेन्स, ही कॉल्ड देम एज डोमेन्स। यहाँ तो उसने किंगडम की बात नहीं छीड़ी, यहाँ तो उसने डोमेन की बात छीड़ी। तो ही क्लासिफाइड लाइफ into three domains. He classified life into three domains. One is called as archaebacteria. Archaebacteria. Second is called as bacteria. Third is called as eukaryote. Eukaryote. So he classified all life into three domains, not kingdoms. One is called as archaebacteria. Do you know what are archaebacteria? These are called as ancient bacteria. These are called as ancient bacteria. First form bacteria. तो ये बैक्टीरिया जो हैं, they are of three types. कभी-कभी आता है ना, what are the types of archaebacteria? These are called as ancient bacteria. पहले ये बने हैं, ये पहले ये वाल हुए। One is called as methanogens. Methanogens. Second is called as halophilus. Halophilus. Third is called as thermoacidophilus. And the first archaebacteria is called as methanogens. Second is called as halophilus या salt loving bacteria one होगा। Third is called as thermoacidophilus. In some methanogens, these are also called as methane producing bacteria. Methane producing bacteria. यानी ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जब ये प्रोसेस मतलब ये एक्चुअली जो कैटल है ना, कैटल एनिमल जो एनिमल्स हैं, मतलब काउ ले लेंगे हैं, उनके गट जो मैदा होता है, स्टमक होता है, तो उनमें ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो वो ये सेलुलोलेज प्रोड्यूस करते हैं। सेलुलोलेज इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट्स सेलुलोज। सो जब आपने देखा होगा दिस प्लांट्स, दिस एनिमल्स कैटल हैं, तो जब ये खाते हैं तो फिर मुंह को डायरेक्शन में ऐसे करते हैं ना, तो कश्मीर में हम क्या कहते हैं उसे, ड्राम, है ना। तो उस वक्त अगर हम उनके मुंह के करीब जाएंगे तो स्मेल ले लेंगे, वहाँ तो बैड स्मेल आती है। सो उस वक्त क्या प्रोड्यूस, वहाँ मीथेन प्रोड्यूस होता है। उस वक्त ये बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं।
So that is called as methane. So these are also found in marshy places. कहाँ पे? Marshy places, dump places, जहाँ पर bad smell आती है, वहाँ पे ये होते हैं कौन? Methanogens. They produce methane. So that is why they are called as methane producing bacteria. Clear? Second is called as halophiles. Halo means salt. वो habitat जहाँ पर salts होंगे, चाहे वो एक्वेटिक मतलब वाटर बॉडी हो, वहाँ पर बहुत साल्ट्स होंगे, जैसे साल्ट लेक्स में, या दे आर आल्सो फाउंड इन डेड सी. डेड सी में कोई लाइफ ही नहीं होती है, बल्कि बैक्टीरिया होती है वहाँ पे. डेड सी में लाइफ नहीं है, इसलिए हम उसे डेड कहते हैं, बट बैक्टीरिया होती है. दे आर कॉल्ड एज हेलोफाइलस बिकॉज देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स इन डेड सीज है ना. तो तभी तो वहाँ कोई सिंक नहीं होता है, जो मैंने आपको पता नहीं है, आपको दिखाया किसी को एक्सपेरिमेंटल लैब में मैंने दिखाया कि ऐसे हम डेड सी बनाएंगे. तो उसमें हमने लींबू डाला, पहले फ्रेश वाटर ले लिया, उस पर लींबू डाल लिया, तो वो नीचे गया, उसके बाद हमने उसको साल्ट ऐड किया, फिर लींबू डाला, वो ऊपर आ गया. तो जो लिविंग थिंग्स और डेड थिंग्स उसमें सिंक नहीं होते हैं, वो फ्लोट करते हैं डेड सी में. तो उन डेड सी में those bacteria are present. They are called as halophilus. And halophilus are those bacteria which are found on the habitat where there is high salt concentration. That is why they are called as halophilus. Another type of bacteria they are called as thermoacidophilus. Thermo means high temperature. Acido means acidic condition. तो थर्मोएसिडोफाइल मीन्स लाविंग, यानी वो हैबिटेट जहाँ पे दो कंडीशन हो, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, दूसरा तो एसिडिक कंडीशन होगी. फॉर एग्जांपल कुछ स्प्रिंग्स है ना, कुछ स्प्रिंग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तता पानी जाते हैं है ना, तता पानी जाते हैं, तो वहाँ हार्ट दे आर कॉल्ड एज हार्ट स्प्रिंग्स. उन दो हार्ट स्प्रिंग्स में भी बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनमें 70 डिग्री टेम्परेचर भी जाएगा तो वो मरते नहीं. तो दो वहाँ एसिडिक कंडीशन भी होती है और हीट भी या टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थर्मोएसिडोफाइलस. सो दीज आर कॉल्ड एज आर की बैक्टीरिया आर एंशिएंट बैक्टीरिया. क्लियर? देन देयर इज बैक्टीरिया. सो बैक्टीरिया दीज आर इंक्लूड बिलियो ग्रीन एल्गी. So these are also called as cyanobacteria या cyanophytes. Cyanobacteria iti mono means cyanophytes. Why? They contain pigment is hypocyanin. They contain a pigment called as hypocyanin. Hypo means algae. Algae branch is called as phycology. So they contain hypocyanin, that is why they are called as bilirubin algae. So they are photosynthetic bacteria. So they are called as bacteria. These include, for example, nostoc, anabina, wallops. के example कोई पूछता है ना, कौन bacteria bilirubin algae? They include wallops, nostoc, anabina. Then eukaryotic. So eukaryotic has been divided into different kingdoms. One is called as Monera. Second is called as Protista. Third is called as Pineal. Fourth is called as Plantae. Last one is called as Animalia. So this type of kingdom system is called as a domain system, because here whole life was classified not into kingdom but here domains. 3 domains. One is called as Archaebacteria, second is called as bacteria, third is called as eubacteria. Eubacteria are further classified to Monera, Protista, Fungi, Plantae. So this is called as system of classification. Now last one is 5 kingdom system of classification. So मेरे ख्याल में वो कल पढ़ेंगे. So I think this is sufficient for today. Thank you very much.